ठीक है। Okay, please start identifying alternative ways. Somebody please read. और कैमरा अगर ऑन कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा हमको बात करने में। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो पढ़ो तो। और Identifying alternative ways. After determining the existing and future capacity requirements, you may also need to identify the ways to modify the existing capacity of an organization. You can characterize the strategies for modifying capacity into two responses. Short-term responses. During short-term period, the मतलब capacity ये does बात not change. ध्यान रहे, Organization. ये एक मिनट, ये बात ध्यान रहे कि मॉडिफाई वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मॉडिफाई वर्ड का जिक्र हुआ है, मेंशन हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए। During a short-term period, the capacity does not change. Organizations rarely open or close the message provided by it on a regular, monthly, or yearly basis. You can modify the capacity with the help of many short-term adjustments. Selection of these adjustments is based on whether the conversion process is primarily labor or capital intensive, and whether the product is one that can be stored in an inventory. Capital intensive processes are mainly based on physical facilities such as plant and equipment. So you can operate these facilities more or less intensively. To modify the short-term capacity by changing the capacity, you can easily modify the cost of setting up, changing over and maintaining facilities, procuring raw materials and manpower, managing inventory and scheduling. To modify the short-term capacity of labor-intensive processes, you can hire people or suspend employees. You can also allow the employees to work overtime or be idle. This method of changing the capacity this method of changing the capacity is expensive because the organization. आवाज बहुत आ रही है रोशन, तुम्हारे पास से? Yes sir, background में बगल में मशीन चल रहा है. ओके, somebody else please, जिनकी नेट इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो। बलरामपुर में। यस सर। पढ़ दो आओ। To modify the short-term capacity of labor-intensive process, you can hire people or suspend employees. You can also allow the employees to work overtime or be the idle. This method of changing the capacity is expensive because the organization has to pay the hiring costs, unemployed pay, or premium wages. Also, it may be possible that the organization loses their scarce human skills permanently. Moreover, the scheme of changing the capacity also depends on the nature of products. For example, storing perishable goods in inventories is not feasible. Some organizations that offers product or services such as insurance, protection, emergency operations and taxi services implement different schemes to modify their capacity. ठीक है, हम लोग कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और इसमें यह जिक्र हो रहा है कि क्या क्या मॉडिफिकेशन, क्या क्या मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, सो दैट कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल में रहे। इस टॉपिक को या तो जनरल तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं कि सारा काम ठीक से होना चाहिए, उसका इंतजाम होना चाहिए, ठीक है, ताकि भाई सब इंतजाम मेरे पास हो, या फिर इस टॉपिक को एक अलग अंदाज से भी हम लोग पढ़ना चाहेंगे, दैट इज की दैट इज जैसे मान लीजिए कि आपका मतलब डिमांड एक गैप है, आपका मार्केट में एक गैप है, ठीक है।
ऑफ कोर्स वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की एग्जांपल की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। तो टोयोटा के साथ क्या था कि एक बहुत बड़ा गैप था, जिनका परचेजिंग पावर कम था, जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज्यादा नहीं था। डिस्पोजेबल मतलब जो भी कमा रहे हैं वो खर्च हो रहा है, तो अलग सा कुछ एक रकम नहीं बचती थी कि हम और इन्वेस्ट कर सके। तो जितना इनकम बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, उतना ना मतलब ये जो तुम्हारा आपका ऑटोमोबाइल है वो बढ़ता है, उसका परचेज बढ़ता है। खैर, तो अब है कि शॉर्ट टर्म कैपेसिटी है, उसमें सारा इंतजाम करना है, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी उसमें भी सारा इंतजाम करना है। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज आपको शेयर करते हैं कि अभी एक 2013 का केस स्टडी है। ठीक है, इसको एक मिनट रुकिए, इट विल गो ओवर हियर। अभी पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इसी को। और इसमें 2013 का जिक्र है, और अभी जो 2021 है वो बिल्कुल सेम सिचुएशन है, क्योंकि 2008-9 का पोस्ट 8-9 है। तो 8-9 में आपका बहुत बड़ा ये आर्थिक मंदी आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, तो खैर इसमें यहाँ पर हाँ, इसको पढ़िए तो ज़रा, ये रागिनी आप पढ़िए, ये 2.3 इंडस्ट्री डिमांड डिटर्मिनेंट्स। Industry demand determinants. Worldwide automobiles demand is tied to vehicle price, per capita disposable income, fuel prices and fuel price and product. म्यूट करो बाबू एक आदमी। fuel रागिनी price पढ़िए। and product innovation. On the supply end, vehicle price stem from a material and equipment cost, with higher steel and plastic price raising manufacturers' purchasing cost and ultimately retail price. During the past 5 years, automakers have been plagued with high steel and plastic prices, which have raised manufacturing cost and product prices. On the demand side, per capita disposable income determines affordability for consumers. As income increases, the propensity to purchase motor vehicles increases as they become more affordable. Incentives are used to generate sales during period of low economic growth. Over the past 5 years, there has been a significant increase in the number of automobiles financing companies being established in the BRICS. This has ब्रिक नेशन है। resulted ब्राजील, ये ब्रिक नेशन का मतलब होता है ब्राजील है, आपका रशिया है, इंडिया है, चाइना है, एंड ब्रिक्स इज ऑल अबाउट साउथ अफ्रीका एज वेल। ब्रिक नेशंस। ठीक है। This has resulted in the numbers of range of automobiles loans increasing, which has contributed to हाँ, stronger एक मिनट। industry demand. हाँ ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू प्लीज। Yes, sir. In the developed world, overall improved quality amongst most manufacturers has caused buyers to feel free to use prices to differentiate similar products. Consumers are increasingly better informed about a vehicle's actual cost and less likely to accept large annual price increases. In an era of low अच्छा एक मिनट रुकिए, रागिनी होल्ड कीजिए, रागिनी होल्ड। वर्षा आप पढ़िए तो, इन द एरा ऑफ लो इन्फ्लेशन से, इन द एरा ऑफ लो इन्फ्लेशन। In an era of low inflation, customers familiar with dealer cost information from consumer publications and the internet have become more astute
when negotiating the purchase of a vehicle. In this way, consumer awareness and access to information can determine demand. Movements in fuel prices also generally influence the demand for vehicles by type. During periods of high fuel prices, more fuel efficient vehicles are in demand. Over the past 5 years, the price of fuel has been rising, which has encouraged the adoption of hybrid and other fuel efficient models. For example, Japanese car makers offering more fuel efficient vehicles took market share from manufacturers of large vehicles throughout the latter half of the past decade. Last, production innovation can spur demand, especially with regard to more fuel efficient vehicles such as hybrids and electric models. The more fuel efficient a model is, the more likely a customer will be willingly to invest up front in a new car for potential savings on fuel cost down the road. अब देखिए, ये आपका जो केस स्टडी है ये 2013 की है, ठीक है। इसमें सारा 2013 के बारे में लिखा हुआ है, 2013 और 2018 तक का ना फोरकास्टिंग किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें तो 2008 और 2009 इसका पोस्ट की बात हो रही है, इसके बाद की बात है, ठीक है। तो उस टाइम में क्या हुआ कि फिर वो है कि अब डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया, सारी परचेजिंग पावर कम हो गई, बहुत नुकसान हुआ था। तो अब है कि जितने भी जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे, ठीक है, उनका कार बिक नहीं रहा है। तो अब है कि डिमांड जो हुआ था वो आपका हाइब्रिड का हुआ था। तो हाइब्रिड का मतलब दो चीज को कंबाइन करके दो जरूरत को पूरी करने वाली कार, दो जरूरत को पूरी करने वाली, ठीक है। उसके बाद से फ्यूल एफिशिएंट वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया कि कंजम्पशन कम हो, ठीक है। तो अब इस बात से कैपेसिटी प्लानिंग को आप समझिए कि आपको कैपेसिटी प्लानिंग किस तरह से करना होगा सो दैट की द कंसिडरेशन इज हाइब्रिड एंड फुल एफिशिएंट। हाइब्रिड भी बनाना है और फ्यूल एफिशिएंट कार भी बनाना है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम रखना है और आपको लो प्राइस पे कार ऑफर करना है। यही सारा समीकरण जो है कैपेसिटी प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड ऑल द प्रोडक्शन प्लानिंग, ये अपने वो इसमें क्या नाम है, नैनो फुलफिल नहीं कर पाए हम लोग, ठीक है, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो दैट इज वाई वो प्रोजेक्ट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर कैपेसिटी प्लानिंग सही से होता तो फिर सस्टेन हो जाता, क्योंकि इकोनॉमी सेगमेंट की कार थी और वो मतलब टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी थी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि फुल एफिशिएंट भी है और इस बाहर से स्पेस कम है और इनसाइड स्पेस बहुत ज्यादा है। ये बहुत शानदार बात थी इस नैनो में। लेग स्पेस बहुत जबरदस्त है, रूफ स्पेस बहुत जबरदस्त है और बाहर से छोटा भी है, ठीक है। एंड फ्यूल एफिशिएंट 600 सीसी कार है। क्लियर हुआ? क्लियर है? इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें एक इसका स्वॉट एनालिसिस भी है और इसका बीसीजी मैट्रिक्स भी इसमें है यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ले सकते हैं। इसमें जो टोयोटा का पोर्टफोलियो है उसमें आपकी बात हो रही है कि भाई देखिए, कैश काउ में हमने कहा था आपको कैमरी एंड कोरोला, ठीक है, इनोवा भी है। हाँ बोलिए बोलिए, एनीबॉडी वांट टू आस्क? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये सब कैश काउ में है, कैमरी, कोरोला सेडान में, और इनोवा एंड वेंजा ये मल्टी पर्पस व्हीकल है, और स्मॉल में है दाइहात्सु, ठीक है। तो अब जो है तो आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव वेज, तो अपॉर्चुनिटी जो है उसको कैपिटलाइज करने के लिए, तो अभी फिर से वही सिचुएशन है कि पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। अब कोरोना की वजह से पूरा आर्थिक मंदी भी है, ठीक। तो अब इसमें कैसे हम लोग कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे, वही सब सारी बात, ठीक है। वर्षा, इस लिस्ट को आप लोग पढ़िए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आई होप कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। Yes, sir. यस सर, आ रही है सर। ठीक है। वो एग्जांपल क्लियर रहा?
Yes, sir. 2008-9 में भी वो सब प्राइम्स का जो लोन दे दिया गया था उससे बहुत पैसा गड़बड़ हुआ, और वहां भी उस टाइम भी था और ये टाइम भी वही है। खैर ठीक है, लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्ट्रेटजीज फॉर चेंजिंग कैपेसिटी कर्व्स, पढ़िए इसको। Type number 1, inventories. Finished goods are stored in inventories during relaxed time periods to meet the future demand. Number ठीक है। 2, backlogs. During the peak demand periods, orders are taken from willingly customers. Their demands are fulfilled only after the peak demand period. Employment. Employees are hired or laid off according to the rise or fall in output. Workforce. Employees are required to work overtime during the peak demand periods and can remain idle or work for fewer hours during the relaxed demand period. Employee training. Training should be provided to every employee in several tasks instead of having each employee specialized in only one task. Rotate employees among different tasks whenever required. This is an alternative to hiring and laying off the employees when different skills are required. ये सारी जो बात है एकदम जनरल सी बात है आपको, ठीक है। बैकलॉग्स अलग क्लियर कीजिए, इन्वेंट्रीज का स्टॉक सही रखिए ताकि स्टार्विंग नहीं हो। इन्वेंट्री का जो भी आपका सब चीज है उसको ये कीजिए। एम्प्लॉयमेंट में सारा एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम ठीक रखना पड़ता है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग पर खास ध्यान देना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे और जॉब रोटेशन नहीं करेंगे तो फिर है कि हाइब्रिड का जो कंसेप्ट है, तो हाइब्रिड को बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे एम्प्लॉइज। एंड हाइब्रिड इज ऑल अबाउट कि कंबाइनिंग टू concepts in one package. तो हाइब्रिड इज ऑल अबाउट समथिंग लाइक कि भाई ये आपका ये लॉन्ग रैली कार एंड द फैमिली कार एज वेल एंड फ्यूल एफिशिएंट कार एज वेल, ठीक है। तो उसमें सबसे परफेक्ट मेरी नजर में जो एग्जांपल है हाइब्रिड में, वो आपका ये है स्विफ्ट डिजायर जो हैचबैक है। उसको आप लॉन्ग रैली में भी इस्तेमाल करते हैं, लोग रेस में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से ऑफिस जाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, फैमिली एंड ऑल लाइक दैट, ठीक है। तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग जब तक नहीं होगा, ये सारी बात तो है ही ऊपर में जितनी है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय ट्रेनिंग अगर प्रॉपरली नहीं होगा, स्पेशलाइज नहीं होगा, तो फिर हाइब्रिड प्रोडक्ट नहीं आ सकता है। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। बलराम इसको पढ़िए। टाइप एंड एक्शन। Sub process design. Changing the content of a job at every workstation enables you to increase the capacity. You can use the work methods analysis techniques to redesign jobs. Subcontracting. You can hire any other firm during the peak demand periods. Maintenance. Temporarily discontinue routine preventive maintenance of the facility and equipment so that during the peak demand periods and the facility can be operated to meet the requirements. अच्छा, पीक डिमांड को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? व्हाट इज पीक डिमांड? व्हाट इज पीक डिमांड? सर मैच्योरिटी स्टेज जहाँ पे मतलब सबसे मतलब हाईएस्ट। नहीं बाबू, पीक डिमांड का मतलब हाई डिमांड सर, जब फेस्टिवल दीपावली हो रही है, सब होता है ना। हाँ, धनतेरस, ईद, ठीक है, दुर्गा पूजा, आपका ये सब पीक डिमांड का है ना। मतलब अचानक से बूम ऑफ बिजनेस होता है, अचानक से परचेजिंग बढ़ जाता है, ठीक है। सबसे परफेक्ट एग्जांपल रहेगा आपका धनतेरस का जो दिन है, दिवाली में। उस दिन हर एक पहले भी हमने डिस्कस किया होगा, बहुत ज्यादा सेल्स होता है, 8 से 10 लाख ऑन एन एवरेज पर यूनिट, 20-25 लाख 40 लाख भी जाता है। खैर, तो उस पीक डिमांड को कैपिटलाइज करने के लिए, उस जो अपॉर्चुनिटी है उस बस को बोर्ड करने के लिए क्या क्या आपको तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो उसमें कि प्रोसेस को भी चेंज करना होगा, रीडिजाइन करना होगा, सारी चीज है, तो लाइक दैट। और उसी को अब फिर से हम उसमें थोड़ा हम टोयोटा में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसको, इस एग्जांपल को। तो दैट इज कि अभी फिर से जो लॉकडाउन खत्म होगा, है ना, क्योंकि न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे थे, तो लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद से फिर से ऑटोमोबाइल का डिमांड आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्चुअली डिमांड तो है,
लेकिन अभी लोगों ने उसको अभी पोस्टपोन कर दिया, रोक दिया। तो अब पूरी तैयारी शुरू हो गई है या शुरू हो चुकी है, ठीक है, और सारा मैन्युफैक्चरिंग का भी हिसाब किताब कि अभी आपका डिमांड बढ़ेगा, परचेजिंग बढ़ना है, ठीक है। तो नाउ हाउ यू आर गोइंग टू कोप अप, क्योंकि एक और बात इसमें है, ये हमको ये बात बताइए रोशन, हेलो रोशन। यस सर। हाँ, अभी बाबू लॉकडाउन थोड़ा सा खुला है ना, तो लोग अपना बाहर आकर के शॉपिंग करेंगे वगैरह, ये फिर लॉकडाउन लगने वाला है, हो सकता है। यस सर, लगेगा सर। थर्ड फेज भी लाइन में है। यस सर। अच्छा, अब है कि बाबू मेरी दुकान भी तो चलनी चाहिए, यस तो सर। बहुत शॉर्ट टाइम है, मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, उसी में जितना ज्यादा से ज्यादा हम कैपिटलाइज कर लें, क्योंकि फिर आने वाला समय थोड़ा मतलब आपका डाइसी है, यस सर। ठीक है। तो अब समझिए कि कैपेसिटी प्लानिंग और प्रोसेस डिजाइन और सब कॉन्ट्रैक्टिंग और मेंटेनेंस और भी सारी बातें, ठीक है, वो किस तरह से आपको जल्दी जल्दी रीशेड्यूल रीशफल करना होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा वक्त है, 2 महीने का वक्त है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, और इंडिया के हवाले से क्या है कि भाई इंडिया कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, और इंडिया का मार्केट जितने भी जो बाहरी कंपनी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन यही है, सबसे ज्यादा कंजम्पशन। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक नहीं हो गया, ठीक है चलो दूसरे कंट्री में कर लेंगे, नहीं, इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट। सर ठीक है, चलिए लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेस को थोड़ा पढ़ते हैं हम, ठीक है। वर्षा प्लीज पढ़िए। With the economy expanding day by day, you also need to expand your business to meet the increasing customer demand. In such a scenario, you need to permanently increase the capacity of your organization. However, along with this expanding the capacity, you also need to consider the approaches used for contracting the capacity. Following are two methods to modify the capacity in long run. Number one, capacity expansion. The cost, benefits, and risk associated with the capacity expansion create a decision problem for an organization. If an organization forecasts that it requires almost double its present capacity at the end of 5 years, one option is to expand the complete required capacity now. Another option is to expand the required capacity in the increments year by year. Expanding the capacity now can lead to some अब जो बात हो रही advantages. है, अब जो बात हो रही है लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, वो पहले शॉर्ट टर्म की बात थी, तो पीक ऑफ बिजनेस है या जो भी आपका टाइम है उसको कैपिटलाइज करने के लिए बात हो रही थी। अब लॉन्ग टर्म की बात हो रही थी, लॉन्ग टर्म में हम किस तरह एग्जांपल आपको दें, हम फिर से टोटा ही एग्जांपल देना चाह रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में मतलब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इकोनॉमी सेगमेंट में इज टोयोटा अ वेल रिकॉग्नाइज्ड लीडर ब्रांड इकोनॉमी सेगमेंट में, यस और नो? यस सर। सर ये कंट्री का पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है सर। नहीं, वो तो तुम्हारा परचेस का बात कर रहा हो नीरज, हम कह रहे हैं कि टोयोटा जो कंपनी है, टोयोटा जो ब्रांड है ना, वो एक ग्लोबल ब्रांड के तौर पर स्थापित हो चुका है। यस सर। यस सर। हाँ, और मतलब एकदम से अनडिस्प्यूटेड थॉट आता है कि अच्छा मतलब आप टोयोटा की कार खरीद लीजिए, ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट भी रहेगा और आपको स्पीड भी मिल जाएगा और ये एकदम आग बंद कर, ठीक है। ये भी कुछ बुनियादी बातें हैं उसमें, खास करके आपको जो हमने दिखाया आपका जो बीसीजी मैट्रिक्स था उसमें अगेन टोयोटा एंड कैमरी, ठीक है। तो अब है कि लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेस को एड्रेस करने के लिए, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेस को एड्रेस करने के लिए आपको किस स्पीड से आपको आगे बढ़ना है, स्पीड से आगे क्यों बढ़ना है? रीजन बीइंग कि मेरा विजन जो है, मेरा जो विजन है, it's just not about the the market share or money or no, it's all about establishing my company, my company's organization, my organization, the name, ठीक है। मेरा जो विजन है, ठीक है, ऑटोमोबाइल जो कार बनाने का जो मेरा विजन, वो पूरे ग्लोबल लेवल पर स्थापित हो, ठीक है। जो पैसा है ना, कितना रेवेन्यू, इतना डॉलर ही हो रहा है, वो सेकेंडरी है बाबू, ठीक है। आई शुड बी द सिनोनिम्स ऑफ ये क्या कहते हैं उसको, मतलब ट्रस्ट, भरोसा, ठीक है, एतबार,
इसका हम सिनोनिम्स बनना चाहते हैं, इसलिए अब लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन को उस नजर से देखिएगा। खैर ठीक है, आगे पढ़िए। आगे पढ़िए वर्षा। Yes, sir. The main advantages with this option is that the organization can avoid the higher building cost, the risk of accelerated inflation, and the risk of losing additional future business because of insufficient capacity. The main disadvantage of this option is that the organization finds it very difficult to collect a large amount of finance for investment at one time. Also, demand forecasts may be wrong and resources are wasted due to low demand. However, if the demand that an organization predicts is accurate, then also it is possible that the organization cannot progress till the end of 5 years. End of पढ़िए। Yes, sir. End of 5-year plan. In this case, organization will not receive the return for several years because it has to invest in an excess capacity facility. In such a scenario, expanding the capacity in increments is useful. ठीक है, एक वर्ड बार बार इसमें रिपीट हुआ है, डिमांड, है ना। तो डिमांड सिंपली इस तरह से नहीं लीजिएगा कि मतलब हम लोग जो डिमांड करेंगे एक एक इंडिविजुअल खुदरा विक्रेता, रिटेल नहीं। जैसे जिप्सी के साथ क्या हुआ, मारुति सुजुकी का जो एक मॉडल है जिप्सी, उसको गवर्नमेंट ने ले लिया, पुलिस डिपार्टमेंट और इंडियन आर्मी ने। हेलो क्लास। यस सर। ठीक है। यस सर। फॉर्च्यूनर जो ब्रांड है उसको पुलिस डिपार्टमेंट ने लिया ग्लोबली? नहीं सर। नो सर, टाटा सुमो। अरे टाटा सुमो तुम्हारा कहां से आ गया, ग्लोबल में बात कर रहे हैं तो। यस सर, ग्लोबली फॉर्च्यूनर लिया गया। उधर उधर बात कर रहे हैं यार, समुंदर पार। वेस्टर्न। ठीक है, खैर ज्यादा बेहतर एग्जांपल रहेगा जिप्सी का ही, जो हम लोग देख रहे हैं, इंडियन आर्मी में जिप्सी और पुलिस डिपार्टमेंट में जिप्सी, क्योंकि बहुत ही रॉबस्ट मशीन है। और इस मशीन को एनालाइज कीजिएगा तो लाइट भी है, फ्यूल एफिशिएंट भी है, ठीक है, तेज चलती भी है और मजबूत भी है, इसका मेंटेनेंस भी कम है, इस तरह सारी चीज है। तो अब डिमांड जो है, इट इज जस्ट अबाउट द मार्केट डिमांड। मार्केट कैसे बिहेव करेगा यू नेवर नो। तो मार्केट का मतलब आपका जो कस्टमर है वो आपका बाबू एक पूरा डिपार्टमेंट भी तो हो सकता है, सिर्फ हम लोग ही थोड़ी हैं। पूरा इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, पूरा इंटायर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, ठीक है, वो पूरा भी तो कस्टमर हो सकता है ना। समझ में आ रही है बात? तो अब है कि उस हिसाब से आप कैसे कैपेसिटी को एक्सपैंड करते हैं, कैसे उसमें सफिशिएंसी करते हैं, सारी चीजें इनका भी इंतजाम करना होगा आपको। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हेलो क्लास। यस सर। हाँ Yes, sir. ठीक है, मतलब जिप्सी का एग्जांपल लेके चलिएगा, जिप्सी का। उसमें खास करके आपका लैपटॉप्स का बेहतर एग्जांपल रहेगा कि कंपनी पूरा ऑर्डर दे दे कि भाई हमको मतलब दिस मच पीसेस ऑफ लैपटॉप चाहिए, तो वो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में होता है अपने एम्प्लॉयज के लिए सारी चीज। मतलब एचसीएल इज अ कस्टमर, यू नो, इन्फोसिस इज अ कस्टमर, तो वो कितने लैपटॉप मांगेंगे, वो दे विल आस्क इन थाउजेंड्स एंड लैक्स, इतना सिस्टम आप हमको दीजिए। तो वो डिमांड को, वो भी एक डिमांड आता है, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक्सपेंशन कैपेसिटी, ठीक है, क्या क्या इंतजाम है, लाइक दैट। और उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपका फाइनेंसेस। तो फाइनेंसेस इज ऑल अबाउट यू नो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। तो ऐसी जगह पर आप सारा चीज इंतजाम कीजिए सो दैट कि वहां प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट हैपेंस टू बी द पैसा। क्योंकि अब बाकी जितना भी सारी चीज है उसको ट्रांसपोर्ट हम कर लेंगे, वो इकोनॉमिकली भी कर सकते हैं हम, उसका सिर्फ हम नंबर बढ़ा देंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे, तो इकोनॉमिकली वे में मेरा पटना में जो फैक्ट्री है उसमें आ जाएगा महाराष्ट्र से, उसमें फिर दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, चलिए अब कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। ओके,
ठीक है, वर्षा प्लीज Capacity, कंटिन्यू। yes, sir. Capacity contraction. In this method, you sell the existing facilities, equipments, and inventories to contract the capacity. You need to terminate the production process if the product demand decreases. If the demand decreases continuously for a long period, then the last possible option is to shut down the organization. Alternatively, you should discover new ways to maintain the existing capacity, as heavy amount of cost, effort, and human skills are required to build an organization again. For example, you can transfer the technology and skill base to other products or services frequently. The product that reaches its decline phase can be replaced with other products without increasing the capacity. ठीक है, कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्शन में एक तरह का साफ इंस्ट्रक्शन है कि अगर बेहतर काम नहीं हो रहा है तो शट डाउन कर दीजिए। सिंपल, जस्ट मतलब नहीं होता फिट टू फाइट और फिट टू फ्लाइट। तो यू हैव टू टेक द फास्ट डिसीजन वेदर टू गो फॉर इट और वेदर नॉट टू गो फॉर इट। उसी में आपके रतन टाटा साहब ने बहुत सारी जो गड़बड़ चल रही थी उसको उन्होंने सेल ऑफ किया और सारा पैसे को इन्वेस्ट कर दिया होटल्स में बाहर जाकर के। ठीक है, तो उसमें एडवाइजेबल यही है, बट स्टिल इट्स अ वेरी इमोशनल डिसीजन कि उसको बंद कर देना। लोग कोशिश करते हैं कि भाई उसको वो चले एंड ऑल। तो कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्शन का भी एडवाइस और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है, ये सिंपल था। ठीक है, डिमांड में ना इसी में बहुत ज्यादा डिस्कशन है डिमांड में कि डिमांड किस तरह से आता है, मतलब अपॉर्चुनिटी वाइज हमने बोल दिया। लेकिन अब है कि डिमांड जो बहुत कम होता है कि अचानक से लोग, जैसे चाइना में क्या है कि अचानक से सब लोग साइकिल पे हैं। एरिया सेल्स मैनेजर इज आल्सो ऑन द साइकिल, द सेम बाइसिकल एंड द सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एंड दे आर वेरी मच कंफर्टेबल। तो अब अचानक से कोई ऐसी तो लहर नहीं चले कि भाई डिमांड कहीं शिफ्ट हो जाए, तो इसका भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो यू हैव टू ऑफर such a combination pack that is hybrid, fuel efficient, fast, light, aesthetic, that is beauty, everything. And that उसका परफेक्ट एग्जांपल आपका जो है वो है जिप्सी। जिप्सी खूबसूरत भी है, मतलब काश अगर वो अवेलेबल रहता सिविलियंस के लिए, अब तो उसको ये कर दिया गया। तो ऑफ कोर्स हम पूरा मेहनत करते हैं उसको हासिल करने के लिए उसका वैसा ये ऑरा है, मतलब दो हम अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी हम पूरी मेहनत करते हैं उस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए, जिंदगी में लाने के लिए। खैर, तो ये चीज है। खैर ठीक है, अब इसको पढ़िए, इवैल्यूएशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपेसिटी। इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, कुछ कुछ ठीक है, वर्षा प्लीज डू द needful. Yes, sir. Evaluation of short-term and long-term capacity requirements. After modifying the existing capacity of an organization, you can evaluate the short-term and long-term capacity requirements with the help of the following models. Linear programming. This model follows a mathematical approach to evaluate short-term capacity requirements. This approach helps maximize the profits of an organization by selecting the optimal combination of resources. This model is used to identify the difficulties in measuring capacity in a multi-product firm. For example, a company produces two products, A and B. The product A needs machine hours and 5 kg of raw materials, and the product needs 3 machinal hours and 4 kg of raw materials to produce 1 unit of raw materials. Assume that the raw materials and machine hours are limited. The maximum availability of raw materials is 240 kg per month, and machinery is 300 hours per month. The profit margin for the product A is ₹8 and the product B is ₹9 per unit. The linear programming model helps determine the number of units of a product A and B that the company should produce to optimally utilize resources for achieving maximum profits. ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन का आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन का जो किस तरह होता है वो 2x + y = a numeric value, यही है ना? 2x + y = numeric 7, ऐसे होता है लीनियर इक्वेशन। Yes, sir. हेलो क्लास। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो x का, तो ये इक्वेशन एक्चुअली निकालना होता है, ये एक्चुअली इक्वेशन गिवन नहीं है।
तो ये इक्वेशन सारा आपका ना एक्सेल पे निकलता है, ठीक है, सारा आप फीड करते हैं तो इक्वेशन पे प्रोग्रामिंग जो आप करते हैं तो उसमें आपका ये इक्वेशन निकल के आता है। अब उस इक्वेशन से आप पूरा फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि x विल बी 5 तो y विल बी व्हाट, x विल बी 6 y विल बी व्हाट, ठीक है। तो ये एक अच्छा टूल है, ठीक है। और एक आपका डिसीजन ट्री मॉडल है, ठीक है, इसको पढ़िए। Decision tree analysis model. This model follows the decision tree analysis approach to evaluate long-term capacity requirements. In the decision tree analysis model, decision tree is diagrammatically represented so that all the decision points to identify alternative decisions for capacity expansion can be shown. This model performs the following activities. Number 1, identify the order in which all the decision points occur. Second, that identify the alternative decision for each decision point. Third, identify several different outcomes that occur after each decision. Fourth, construct a tree diagram to represent various decisions and their outcomes. Next one, estimate the probability of each outcome. Estimate the profit of outcome of each decision. Evaluate the expected value of each decision. And the last one, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट डिसीजन, ठीक है। डिसीजन ट्री भी एक मॉडल है, ठीक है, जिसमें सारा मैथमेटिकली उसको पुट किया जाता है सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद एक ओवरव्यू लेकर के उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा पढ़िएगा आप लोग। और ये लॉ सर आप लोग को पढ़ाते हैं, लॉ सर अभी? यस सर। सर अच्छा, तो ये बात उनसे समझिएगा, डिसीजन ट्री, क्यूइंग थ्योरी और लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, विथ एग्जांपल। लीनियर प्रोग्रामिंग को उनसे समझिएगा आप लोग, ठीक है। टाइम आई थिंक ऐसा अभी 10 मिनट है, ठीक है। चलिए, सिलेक्टिंग द सुटेबल अल्टरनेटिव। selecting the suitable alternative. After evaluating the short-term and long-term capacity requirements, a company selects and takes necessary measures to implement the best alternative for optimally utilizing the resources of an organization. ठीक है, Short-term or short-term. वर्षा एक मिनट होल्ड कीजिए। सिंपल सी बात है, सारा अल्टरनेटिव को इस्तेमाल करना है, किस तरह से बेहतर होगा, ठीक है। फाइनाइट इनफाइनाइट प्लानिंग है। थोड़ा सा फिर से चलते हैं उधर, एक सेकंड। हाँ, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको पढ़िए। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लीज। Strong focus on research and development. Toyota has a strong focus on research and development to expand its products portfolio and improve the functionality, quality, safety, and environmental capability of its product. The company's R&D efforts are directed at developing new products and processes and improving the capabilities of existing products. The company conducts its R&D operations at 14 facilities worldwide. A strong अब ये 14 focus on R&D. फैसिलिटीज, ठीक है, ये 2013 की बात है, ठीक है। तो 14 फैसिलिटीज में अलग जगह पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तभी जाकर के इतना रिसर्च होगा, तभी जाकर के हाइब्रिड एंड एफिशिएंट। क्योंकि अब एक बात और, पहले भी हमने बोला होगा कि ये आपका 2000 मतलब ना 15 के बाद से ये बिहेवियर शुरू हो गया था कि ठीक है, इकोनॉमी भी ठीक चल रहा है, कोई कोरोना नहीं है, सारा मामला ठीक है, बट स्टिल लोगों ने अपना डिमांड को कम कर दिया था। ये बात हमने अक्सर जिक्र किया होगा, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। नाउ इन दिस सिचुएशन हाउ यू आर गोइंग
टू अट्रैक्ट द कस्टमर। कैसे उसको अट्रैक्ट कीजिएगा? तो जाहिर सी बात है कि एकदम से लो बजट की चीज होनी चाहिए और इजी इंस्टॉलमेंट, सारी चीज जितनी जो आपका फैसिलिटीज है, ठीक है। तो हियर involves a huge amount of operation management and long term planning and short term planning and all the capacity expansions, ठीक है, and all the process designs, in particular process design, कि किसको फॉलो करें कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेरा बेहतर हो, दैट इज की प्रोडक्शन मैक्सिमम हो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे नीचे मिनिमम हो जाए। ये बात क्लियर हुई? हेलो क्लास, कुछ आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर, आ रही है। ओके, Hari, ठीक है। अब तो उसको बलराम नीचे पढ़िए, एक्सटेंसिव प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। Toyota has an extensive production and distribution network. Toyota and its affiliates produce automobiles and related parts and components through more than 50 manufacturing companies in 27 countries with regions besides Japan. During financial year 2012, the company produced 7,43,05,078 vehicles, including 3,94,000 vehicles in Japan and 3,49,500 3 करोड़ vehicles across दैट all तेरे की 3 करोड़ 90,40,000। चलो ठीक है, पढ़ो। ओके, क्लियर है, ठीक है, पढ़िए। 3 crore 94 lakhs vehicles in Japan and 3 crore 49 lakh 5,000 vehicles across all other manufacturing locations. In addition, Toyota has an extensive distribution network. While the company's geographically well spread production base diversifies business risk, its expansive distribution network provides a wider reach, thus boosting revenues. अच्छा, तो इतना ज्यादा जो वाइड नेटवर्क है ना, ये क्लियर है सबको? नंबर सब क्लियर है? ठीक है, ये आपका 3 करोड़ का हिसाब किताब है, इधर भी मतलब ये 3.25 करोड़ का हिसाब किताब है, इधर 3.5 करोड़ का हिसाब किताब है। तो इतना नंबर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट किस लेवल का होना चाहिए? ठीक है, ये आप लोग एनालाइज कीजिएगा। ये बात क्लियर हुई? सर ये हेलो करोड़ क्लास, नहीं है सर, मिलियन में है। So 39 उसको 39 मतलब lakh अपना 40,000. लोकल हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 39,40,000। 40,000. अच्छा, 39,40,000 है, ठीक है, ओके। Yes, sir. मैथ्स में थोड़ा हम बहुत मजबूत हैं, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है हमारा। खैर, तो अब ये नंबर को आप देख लीजिए कि 39 lakhs है एंड आपका ये आपका 34 lakhs है। उसके बाद से एक और नंबर आपका लिखा हुआ है 27 कंट्रीज है, ठीक। तो 27 कंट्रीज में आपको पूरा वाइड नेटवर्क स्प्रेड है आपका, और उसमें लेकर के सबका मैन्युफैक्चरिंग कितना डिसिप्लिन्ड होगा, कितना ज्यादा जस्ट इन टाइम होगा, कितना ज्यादा जिडोका होगा, कितना ज्यादा आपका हिंजुका होगा, ठीक है, कितना ज्यादा 5S होगा, ठीक है, कितना ज्यादा 5 zeros होगा, 5 zeros, ठीक है, all discipline and parameters that it is maintaining the market share in 27 countries and more even besides Japan, ठीक है। yes sir. ठीक है, इसको सेपरेटली हम लोग अब डिस्कस करेंगे। फाइन, चलिए आज के इतना काफी रखते हैं। Yes, sir. Yes sir. ओके।